رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بھائیوں، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے یا جماعت سے نماز پڑھنے کو کہا جائے یا اجتماع میں چلنے کو کہا جائے، عام طور پر لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں، ہماری مصروفیت زیادہ ہے، کاروباری مصروفیات کا ہیلا کرتا ہے، کوئی ملازمت کا عذر پیش کرتا ہے، کوئی غربت و افلاس کا رونا شروع کر دیتا ہے، کوئی اپنی بیماریاں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ہماری بیماری ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم اجتماع میں آئیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس طرح مطلب یعنی کہ شیطان مشورے دیتا ہے اور بندہ وہ کہتا چلا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عبرت کے لیے فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا اور بڑی زبردست روایت پیش کی۔ جو سن رہے ہیں وہ آئندہ اس طرح کا ہیلا اگر ذہن میں آئے تو اللہ کرے کہ وہ رک جائے۔ چنانچہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ 4 قسم کے لوگوں کو دوسرے 4 قسم کے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پیش کرے گا۔ مثلا مالداروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے مقابلے میں پیش کیے جائیں گے، یعنی جب کوئی مالدار، سرمایہ دار یا صاحب اقتدار اس طرح کا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ یا اللہ دنیا میں کاروباری مشغولیت بہت تھی، اس لیے مجھے عبادت کے لیے فرصت نہیں ملتی تھی، ورنہ میں تیری عبادت ضرور کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے پر سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرے گا اور فرمائے گا تو میرے بندے سلیمان علیہ السلام سے زیادہ مالدار اور زیادہ مصروف نہیں تھا، جو حکومت ان کے پاس تھی وہ تیرے پاس نہیں تھی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں، جنات پر بھی تھی، چرندوں پر، درندوں پر، پرندوں پر، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ اسی طرح غلاموں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ اب غلامی کا دور نہیں، ملازم غلام بھی
करोड़ों हुए होंगे, वो भी उज्र करेंगे। जब गुलाम उज्र करेगा, या अल्लाह मैं तो किसी की गुलामी में था, बंधा हुआ था, मैं तेरी इबादत कर नहीं सकता था, अगर मैं आजाद होता, तू मुझे आजाद रखता तो मैं तेरी इबादत जरूर बजा लाता। तो उससे कहा जाएगा तू झूठा है, गलत कहता है। अगर गुलामी मेरी इबादत से माने होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो मिस्र में गुलाम थे, उनकी गुलामी क्यों इबादत में माने नहीं हुई, वो इतनी इबादत क्यों कर गए, इबादत करते रहे, तो उसका मतलब उसकी काट हो गई। इसी तरह गरीब जब बारगाह खुदावंदी में पेश होगा और उज्र करेगा, या अल्लाह तूने मुझे गरीब और मुफलिस बनाया, तो मैं गुर्बत की वजह से रोजी की फिक्र में न दुनिया का रहा न आखिरत का रहा, अगर तू मुझे गरीब ना बनाता तो मैं तेरी इबादत जरूर करता। तो उसके मुकाबले पर सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया जाएगा कि हजरत ईसा से तू ज्यादा गरीब नहीं था। ये हकीकत है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा गरीब। इसी तरह जब बीमारों को पेश किया जाएगा और बीमार इबादत से गफलत का उज्र ये पेश करेंगे कि या अल्लाह तूने तरह तरह की बीमारियों से हमें नवाजा था, तो बीमारियों की वजह से हम तेरी इबादत नहीं कर सकते थे, अगर तू हमें तंदुरुस्त रखता तो हम जरूर तेरी इबादत करते। तो हजरत सैयदना अय्यूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि देख मेरा बंदा अय्यूब, कि इनको इतने सख्त अमराज थे कि इतना सख्त मरज तुझे नहीं मिला, इसके बावजूद क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मेरी इबादत में कोई कोताही की, तो बीमारी के बावजूद मेरी इबादत करते रहे। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा न सरमायादारों का उज्र, कारोबारी हजरात का उज्र चलेगा, ना गुलामों का उज्र चलेगा, ना गरीबों और नादारों का उज्र चलेगा, ना मरीजों और बीमारों का उज्र चलेगा। अल्लाह की इबादत में कोताही के लिए उज्र जो आजकल के गड़े हुए हैं, ये उज्र नहीं चलेगी। मुझे कई लोग टकरते, आप इज्तिमा में तशरीफ लाइए, मेरी माँ बीमार है। अब मुझे भी बहुत तजर्बा हो गया है, क्या बीमार है, ये बीमार है। आप तो कारोबार वगैरह नौकरी सर्विस पे जाते हैं, उस वक्त आपकी माँ को कौन संभालता है? यानी घूम फिर कर बात ये आती है माँ बीमार है, तो ये हजरात कारोबार भी करते हैं, ये उज्र पेश करने वाले नौकरी भी करते हैं, अगर ये स्टूडेंट हैं तो बाकायदा कॉलेज अटेंड करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, ट्यूशन पर भी जाते हैं, फिर शादी गमी में भी जाते हैं, दोस्तों के साथ खुशगपियां लड़ाने के लिए होटलों में भी जाते हैं। इनकी माँ दरअसल उस वक्त बीमार होती है जब इज्तिमा का टाइम होता है ना, जुमेरात को, तो माँ बेचारी बिस्तर पे आ जाती है, अभी हाथ बंद के उसके पास खड़े होते हैं माँ भी। अब मुझे बड़ा तजर्बा है, तो मैं इस तरह कभी कभी समझाता हूँ कि अल्लाह के बंदो, क्या तुम्हारी माँ सिर्फ इज्तिमा के वक्त ही बीमार होती है? जब तुम सारा हफ्ता दंदनाते फिरते हो हर जगह और इज्तिमा की हम दावत देते, तुम्हारी माँ बीमार हो जाती है, बाप बीमार हो जाते हैं, बीवी बीमार हो जाती है, और कई लोग ये कहते हुए शर्माते नहीं, बीवी अकेली होती है। तो अल्लाह के बंदो, तुम जब काम धंधा कर रहे हो तो जब भी तो बीवी अकेली होती है, क्या इज्तिमा के वक्त ही अकेली हो जाती है? तो जो खुदा तुम्हारी हर वक्त की गैरहाजिरी में तुम्हारी बीवी की हिफाजत फरमाता है, वो क्या तुम इज्तिमा में आओगे तो वो हिफाजत नहीं करेगा? यानी मतलब उज्र उमूमन यानी जान छुड़ाने के लिए लोग इस तरह के आजार पेश करते हैं। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, खूब गौर कर लीजिए, खूब सोच लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि शैतान जो है वो बाहर सूरत हमें अल्लाह की इबादत से रोकेगा ही, वो सुन्नतों से रोकेगा ही रोकेगा, वो मजहबी माहौल से रोकेगा ही रोकेगा, वो इन इज्तिमाआत से रोकेगा ही रोकेगा। उसने नमाजें नहीं पढ़ने देनी, अगर नमाज पढ़ने भी देगा तो जमात से नहीं पढ़ने देगा, तो कुछ न कुछ हमें मतलब यानी कैसे हीले बहाने वो सुझा ही देगा। ऐ मालदारों, सरमायादारों, अगर तुम्हारी कारोबारी मशगूलियत और तुम्हारी तिजारती मसरूफियत तुम्हें इबादत से, नेकियों से और सुन्नतों के इज्तिमा से रोकेगी और तुम अगर इबादत में काहिल रहे, दीन के मामले में, सुन्नतों के मामले में, इल्म दीन में जाहिल रहे और तुम्हारी कारोबारी मशगूलियत से तुम्हें रोका, तो कल क़ियामत में ये उज्र नहीं चल सकेगा कि या अल्लाह मैं मजबूर था, मेरी कारोबारी मसरूफियत थी, मशगूलियत थी, इसलिए मैं तेरी इबादत नहीं कर सका, तेरा दीन नहीं सीख सका। तो उसके उज्र पर सुलेमान अलैहिस्सलाम पेश किए जाएंगे, जैसा अभी मैंने अर्ज किया कि वो तुझसे ज्यादा मालदार थे, तुझसे ज्यादा इनके पास हुकूमत थी, इसके बावजूद कभी भी मेरी इबादत में कोताही नहीं। ऐ मालदारों, ऐ सरमायादारों, तुम उस वक्त क्या जवाब दोगे? ये कितने अफसोस की बात है, किस कदर अफसोस की बात है कि दुनिया के लिए सबके पास वक्त है, अफसोस अल्लाह के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं। या बंदा कहता हम बहुत दूर रहते हैं, इज्तिमा की दावत दो,
कि हम तो लांडी में रहते, बहुत दूर रहते, और रोजाना अगर नौकरी करनी है तो लांडी से खारादर आएंगे, लाजमी आएंगे, डेली आएंगे, 10-10 घंटे, 12-12, 15-15 घंटे वहां नौकरी करेंगे। लेकिन इज्तिमा की दावत दो तो वो दूर। यानी दुनिया के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए बंदा तैयार है, लेकिन अफसोस दीन के लिए कोई तैयार नहीं। भाई इज्तिमा में क्या होता है? इल्म दीन ही तो सीखते हैं। अगर ये इज्तिमा की बरकतें ना होती तो आपके चेहरे पर जो हजारों की तादाद में महबूब की सुन्नत जगमगा रही है और सरों पर सब्ज इमामे अल्हम्दुलिल्लाह जगमग जगमग कर रहे हैं, ये कहाँ होता? महबूब के इश्क से ये आपका सीना मदीना कहाँ होता? माहौल की बरकत बहुतों को नसीब होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये टाइम नहीं, लेकिन दुनिया के लिए टाइम, इल्म दीन सीखने के लिए कोई टाइम नहीं, हफ्ते में 2 घंटे के लिए भी टाइम नहीं, और रोजाना दुनिया सीखने के लिए, कॉलेज जाने के लिए सबके पास वक्त है, स्कूल जाने के लिए सबके पास वक्त है, फिर इसके बावजूद ट्यूशन पढ़ने के लिए भी वक्त है। या इज्तिमा में हम आपको कोई फीस नहीं लेते, आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि कई इलाके हैं जहां से मुफ्त लोग, जो मुखय्यर इस्लामी भाई होते हैं, मुफ्त बसें चलाते हैं इज्तिमा में लाने के लिए, तो मुफ्त बस में बैठने के लिए तैयार है। हालांकि कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए कोई मुफ्त बस नहीं चलाता, बल्कि बड़ी भारी भारी फीसें ली जाती। ऐसे ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसमें सैकड़ों रुपया मंथली फीस होती है, और ऐसे ऐसे ट्यूशन होते हैं कि 1 घंटा, जैसे मेडिकल के खासकर जो होते हैं स्टूडेंट, वो बेचारे नहीं सुनते इन बातों को, तो वो मतलब है ना कि महीने के 1-1 घंटा पढ़ने के बसा औकात 5-5, 6-6 हजार रुपया उनका खर्च होता है, ट्यूशन का फीस होती है उसका, बड़े शौक से पढ़ते। लेकिन कितनी मजलूमियत है मुसलमान की कि इसकी बेचारे की किस्मत पर जितना रोया जाए कम, कि दीन सिर्फ दीन बिल्कुल मुफ्त सिखाया जाता है, कुरान उसके मोहल्ले में मुफ्त सिखाया जाता है, उसके मोहल्ले में मदरसा होता है, मिन्नतें की जाती है कि मदरसा पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, उसके पास कोई टाइम नहीं, हालांकि उससे कोई पैसा नहीं लिया, मिन्नतें की जाती। और कॉलेज के लिए लोग धक्के खाते हैं, बड़े बड़े सफर करते हैं, और मतलब रिश्वतें देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर कहीं जाकर मतलब दाखिला मिल जाता है, जो मेयारी कॉलेज माने जाते हैं उनमें बड़ी सोर्स लगानी पड़ती, बड़ा फोर्स करना पड़ता है, हर तरह से कोशिश की जाती है, फिर वहां दाखिला मिलता है। तो ऐ इस्लामी भाइयों, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। आखिर इस दुनिया के पीछे कब तक आप मुट्ठियां बंद करके भागते रहोगे, और दुनिया को दीन पर कब तक तरजीह देते रहोगे? ईमान से बताओ, क्या हमारा किरदार, हमारा रुआ रुआ ज़बान हाल से ये ऐलान नहीं कर रहा कि हमें दीन के मुकाबले में दुनिया अजीज है? जबान से कोई नहीं कहेगा। हम में से हर शख्स कमो बेश दुनिया को दीन पर तरजीह दिए हुए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप कहते हैं ऐसा नहीं है, चलिए आप अपना मुहासबा कीजिए, अपना हिसाब लगाइए। तो इसमें से लगभग तो ऐसे होंगे कि जो नौकरी करते होंगे, तैयारत करते होंगे, तो डेली 10 घंटे 12 घंटे तो ज़ाहिर है कि नौकरी पर लगते हैं या तैयारत पर अपनी दुकान पर सर्फ होते हैं, फिर रात को उसका हिसाब किताब बसाओकात अलग करना होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो है वो भी मतलब है कि दिन में घंटों स्कूल और कॉलेज में गुजारते हैं, ट्यूशन या वैसे स्टडी सेंटरों में पड़े होते हैं, फिर आप सोते भी, जिंदगी का 1/3 तो सोने में गुजर जाता है। उमूमन अगर एवरेज देखा जाए तो हर शख्स गालिबन 8 घंटे तो सो लेता हो। तो अगर किसी को उम्र 60 साल की मिली बिलफर्ज, तो उसके 20 साल तो सोने में गुजर गए, तो वो तो खो गए, उसमें तो बिल्कुल कलम ही रुका हुआ। तो उसकी एक्टिविटीज जो है वो 40 साल रही। अच्छा, इन 40 सालों में भी आप देख लें कि आपका तकरीबन हिस्सा जो दुनिया का, जैसे मैंने दिन का हिसाब लगाया आपका, तो आधो दिन तो जाहिर है कि मतलब यानी कि उसमें चला जाता है, नौकरी धंधे में। 8 घंटे सोने में चले गए, तो दीन के लिए वक्त कितना निकाला? चलो सोने को आप बिल्कुल फारिग कर दें, उसको काउंट ना करें, उसको हिसाब में ना लाएं, और जो जागने का वक्त है उसका हिसाब लगाएं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर दीन के लिए हम निकालते भी हैं तो बहुत बड़ा अगर तीर मार लिया तो यही जवाब है कि जी 5 वक्त नमाज पढ़ते। ये आमतौर पर लोग कहते हैं नमाज पढ़ते, बड़े यानी कि फूले नहीं समाते, नमाज पढ़ते। दीन के लिए क्या करते? नमाज। तो 5 वक्त पाबंदी जमात से पढ़ते जी, फजर में आंख नहीं खुली। फिर जवाब होता है जैसे 4 टाइम तो हम बाकायदा मस्जिद में जाते हैं, और जमात तो जरा मसरूफियत होती है, नमाज पढ़ लेते हैं। तो इस तरह मतलब दीन के लिए बिल्कुल फुसफुसा और पोपला सा काम रह गया, बगैर जमात की नमाज, वो भी तू जा में आता हूं वाली। अगर इसको पूछो ना, इस जो फूल कर कहता मैं नमाजी हूं, आप बिल्कुल यानी कि अपने जमीर से पूछे, समझो आपके जमीर से सवाल कर रहा हूं। अगर इस नमाजी को भी पूछ लो जो बड़े फखरिया कहता है मैं दीन के लिए वक्त निकालता हूं, रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं, या भाई नमाज में फर्ज कितने, उसको नहीं याद होगा। अपने जमीर से पूछे, नमाज में फर्ज कितने, नहीं पता। सजदा कितनी हड्डियों पर होता है, नहीं पता। नमाज के लिए जो वुजू करते हो इसमें कितने फर्ज है, नहीं पता। और दुकान का सारा
हिसाब आपके पास, सारे भावताल आपको मालूम, स्टूडेंट्स को सारे अपने असबाक याद होते हैं, सारे हिसाब किताब उसको याद होते हैं। अगर मर खप कर नऊजुबिल्लाह ने के कहने को कह दीजिएगा, अगर कोई एहसान कर भी लेता है दीन पर, नमाज पढ़ भी डालता है, तो बस वही तू जा मैं आता हूँ वाली नमाज, कोई एहसास नहीं कि नमाज किस तरह दुरुस्त होती है, इसके क्या फराइज है, क्या वाजिबात है, इसकी क्या जरूरियात है, क्या क्या मतलब इसके आदाब है। तो ऐ इस्लामी भाइयों, ईमानदारी से बताओ, आखिर फिर नाकदरी कहते किसको? ये नाकदरी नहीं है कि हमारी सारी की सारी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुसूल दुनिया के लिए वक्त हो गई, और दुनिया के काम धंधे और दुनिया के ही फुनून और उलूम सीखने के लिए वक्त हो गई, दीन के लिए कुछ भी नहीं। आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, यानी किसी ने एलएलबी कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन अगर इसको पूछो 4 कलमे तुम्हें याद है, बगले झलके। अब अपने जहन में सोचो, मुझे 4 कलमे आते नहीं, ईमान मुफस्सल आता नहीं आता, ईमान मुजमल आता नहीं आता, बगले झलके। सही बात है कि हजारों के इज्तिमा में अगर बारी बारी पूछा जाए तो सूरह फातिहा जो है ना नमाज में पढ़ी जाती है, वो भी बहुत कम लोगों को याद होगी, सही माने सही बहुत कम को याद होगी। अत्तहियात जो पढ़ी जाती है नमाज में बहुत कम लोगों को याद होगी, और दुआए कुनूत में तो बहुत सौ का डब्बा गोल हो जाएगा। दुआए कुनूत, जनाजे की दुआ तो हजारों में शायद 2-4 को याद हो। क्या हालत है मुसलमानों। तो ऐ भाइयों खूब सोच लो, अगर तुमने मशगूलियत का उज्र किया क़ियामत के रोज, अगर तुम खुदा ना खास्ता दुनिया में मालदार बन पड़े और तुम्हारी सरमायादारी तुम्हें ले डूबी, मैं खुदा ना खास्ता जरूर कहूंगा, इसलिए आप ताज्जुब नहीं करें कि मेरे नजदीक मालदारी जो है ये कोई सआदत नहीं है, मैं मालदार को सआदतमंद नहीं समझता, ये मेरी एक सोच है। ये मालदार जो होता मेरे लिए बड़ा मजलूम है, बड़ा काबिल रहम है, बेचारा इतना खुशफहमी में होता है, इतना खुशफहमी में होता है, और फिर ऐसी ऐसी बलाएं इनके गले पड़ी होती है कि इनके पास कोई हल नहीं। ये मेरा तो बहुत तजर्बा और बहुत मतलब है कि इस मुख्तसर सी उम्र में काफी तजर्बा, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई मालदार है, अल्लाह ताला मुझे मालदार ना करे, मुझे अल्लाह ताला महबूब का गुलाम करे कि मेरे महबूब ने मिस्कीन रहना पसंद किया था, काश मैं भी साबिर मिस्कीन बन जाऊं। अल्लाह ताला बस अपने सिवा किसी का कर्जदार और मोहताज ना करे, इतना दे कि सिर्फ जरूरतें पूरी हो और जमा करने की हिर्स व हवस जो है अल्लाह ताला वो निकाल दे मेरे दिल में। तो बहरहाल ये कि जो बेचारा मालदार है और हर वक्त वो माल गिनता रहता है और इबादत से अगर वो गाफिल हो गया, दीन सीखने से गाफिल हो गया, और क़ियामत के रोज अगर ये उज्र मालदारी का करेगा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल उसको दी जाएगी और अब उसके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। दुनिया की दौलत और सरमाए को सब कुछ समझने वालों, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज वाक़या सुनिए। एक मर्तबा सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अज़ीमुश्शान लश्कर के साथ कूच फरमा रहे थे। इंसानों का भी हुजूम था, जिन्नात का भी हुजूम था, चरिंदे परिंदे दरिंदे, बड़ा अजीब व गरीब लश्कर जा रहा था। हालांकि आम लोगों का ये लश्कर हो ही नहीं सकता, इनका सब पर हुकूमत थी, ये जा रहा। तो ये शान और शौकत से अज़ीमुश्शान लश्कर लिए गुजर रहे थे। एक मकाम पर एक इबादत गुजार बनी इसराइल का एक बुजुर्ग था, वली था, वो मतलब है कि इबादत में मसरूफ था। वहां से जब ये अज़ीमुश्शान फौज गुजरी तो उस बुजुर्ग ने सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अज़ीमुश्शान हुकूमत है आपके पास। तो हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया, अगर गिरे में कोई बांध लेना तो कभी दौलत की हवस उस पर मुसल्लत ना हो पाए, लेकिन गिरे में बांधे जब। आपने फरमाया कि एक तस्बीह कह लेना, यानी सुभान अल्लाह कह लेना, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह लेना तस्बीह, जिसमें सुभान अल्लाह भी आ गया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही भी आ गया, है ना, जिसमें अल्लाह की ताकी बयान की जाए ना, उसको तस्बीह कहा जाता है। और हम उर्फ़ आम में तस्बीह 100 दानों की या 33 दानों की मोतियों वाली होती है, उसको हम तस्बीह कहते हैं। हकीकत में तस्बीह के माना पाकी, है ना। तो एक मर्तबा तस्बीह कह लेना, मसलन सुभान अल्लाह कह लेना, ये मेरी तमाम तर हुकूमत से अफजल और बेहतर है। कैसे? ये खुद वज़ाहत फरमाते हैं कैसे। इस तरह कि मेरी ये सारी हुकूमत जो है ये तो हो जाएगी फना, मगर जिसने एक बार कह लिया सुभान अल्लाह, ये रहेगा बाकी। सुभान अल्लाह, जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह आपका बाकी रह गया। सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी सारी वसीओ हरीस सल्तनत, जिन्नात भी शामिल, इंसान भी शामिल, जानवर भी शामिल, सब पर जो मेरी हुकूमत और दबदबा है, और ये अरबों खरबों रुपए की दौलत जो है, तमाम तर दौलत सब कुछ
दुनिया जहान की दौलत से अफजल एक बार तस्बीह कह लेना कि ये बाकी, और दुनिया की सारी दौलत सल्तनत फानी है। अगर इसको कोई गिरे से बांध ले, आप बताओ फिर किसको इख्तिदार की हवस होगी? कौन कुर्सी के पीछे अपनी जान खपाए? कौन दुनिया की मतलब है कि दौलत के पीछे अपना मतलब है कि सारा वक्त सर्फ करेगा? सिर्फ मतलब कदर जरूरत कमा ले कि तलबुल हलाल वाजिबुन अला कुल्ले मुस्लिमीन, कि हलाल रोजी तलब करना हर मुसलमान पर वाजिब है। कदर जरूरत करे, कदर जरूरत करे। जमाए माल के लिए मतलब है कि मेहनत करना, मशक्कत करना, इसकी मतलब कहीं भी कुरान और हदीस में पजीराई नहीं, हौसला अफजाई। तो बहरहाल ये कि मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर मालदारी और मशगूलियत दुनियावी कारोबारी अगर बंदा पेश करेगा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश किया जाएगा और इस तरह उसके उज्र को मतलब देने के नाकाम करार दिया जाएगा और वो अपनी सजा का मुस्तहिक करार दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई ये कहेगा कि मैं या अल्लाह गुलाम था, अब अगर तू आजाद रखता तो मैं इबादत करता, गुलामी ने तेरी इबादत नहीं कर रही, तो इस पर सैयदना यूसुफ नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल सामने पेश की जाएगी कि ये भी तो मिस्र में गुलाम थे, लेकिन इन्होंने तो इबादत की, तो पता चला कि गुलामी इबादत में रुकावट नहीं है। तो इसी तरह जो मुलाजमत पेशा है वो भी गौर फरमाए, और ऐसी मुलाजमत हराम है जिसमें मतलब है कि नमाज की इजाजत ना मिले, कान खोल कर सुने, ऐसी मुलाजमत शरन हराम है जिसमें नमाज की इजाजत ना मिले बल्कि जमात की इजाजत ना मिले, तो जमात भी वाजिब। हाँ, अगर जमात में कोई ऐसा शरई उज्र है तो वो एक अलग मैटर है। तो बहरहाल ये कि ऐसी मुलाजमत जायज नहीं जिसमें नमाज और जमात जो है वो मतलब है कि फौत होती नहीं कर, ये उज्र जो है ये नहीं चलेगा क़यामत का। या अल्लाह में मुलाजमत करता तो इसलिए नमाज का मेरा सेठ इजाजत नहीं देता, तो क्या तेरा सेठ राज़िक था, रोजी देने वाला ये था? जब तुझे पूछा जाता था दुनिया में तो तू यूं कहता था कि रोजी देने वाला अल्लाह है, तूने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? आप बताओ क्या जवाब? अगर किसी बदकार सेठ की खातिर आपने नमाज तर्क की तो आप जवाब क्या दो? अगर सेठ की वजह से रोजा तर्क किया तो आप क्या जवाब? सेठ की वजह से झूठ बोले तो आप क्या जवाब दो? सेठ कहता था इसलिए मैं रिश्वत दे ही आता, मजबूर था। सेठ कहता था इसलिए मैं गुज़रा सूद का भी हिसाब लगा लिया करता था, मजबूर था। तो आप बताइए कि फिर अल्लाह ताला ने अगर ये फरमाया कि तूने मेरे महबूब का इरशाद नहीं सुना था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सूद देने वाला, लेने वाला, सूद का कागज लिखने वाला, ये एंट्री करने वाला, हिसाब किताब करने में तबाह देते, और सूद की गवाही देने वाला, गारंटी जो देते, तो ये चारों पर लानत है और चारों एक ही रस्सी में बंधे हुए। क्या जवाब? क्या मैं राज़िक नहीं था? अल्लाह खैरुर राज़िकीन, तुमने नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था कुरान शरीफ? आप बताइए क्या? या अल्लाह सेठ मजबूर करता था इसलिए मैं मेरा मिलावट वाला माल भी चला दिया करता था। तो क्या तूने मेरे हबीब का इरशाद नहीं सुना था, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। सरकार तो अपने गुरों से, अपनी सुन्नत के रस्ते से उसको खारिज कर रहे कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, तुम सेठ की वजह से करते। आप बताइए, ऐ मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गफलत की नींद से बेदार हो जाइए और ऐसे जवाब तैयार कीजिए जो अल्लाह की बारगाह में दिए जा सके। और यकीनन कोई ऐसा जवाब तैयार नहीं किया जा सकता जो अल्लाह की बारगाह में दिया जा सके, उज़्र नहीं चलेगा। जब अल्लाह रोजी देने वाला है, और ये कन्फर्म हकीकत भी है कि अल्लाह रोजी देने वाला और अल्लाह ही रोजी देने वाला, बाकी सारे के सारे ये असबाब है, ज़राए, हकीकी राज़िक अल्लाह ताला ही है। तो अब बताइए कि मतलब जब उसने खुद इरशाद फरमा दे कि मैं रोजी देने वाला हूं, तो फिर मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिर ये कैसे आपके आज़ार चलेंगे और किस तरह मतलब ये सारा मतलब है कि मामला चलेगा कि जी वो हमको सेठ यूं बोलता था और सेठ यूं बोलता था और ये नहीं करने देता था और वो नहीं करने देता था, हम बैठे रहते थे, टेलीफोन आता था तो सेठ बोलता था कह दो मैं नहीं हूँ, हम सेठ की वजह से मजबूरी थी, हम कह देते थे सेठ नहीं, वरना वो नौकरी से निकाल देते। तो सेठ के हाथ में कब मतलब है कि रोजगार दे दिया जाए? ये सब के सब हमारे ईमान की कमजोरियां। ऐसी नौकरी हरगिज़ हरगिज़ जायज़ कि जिसमें मतलब है कि शरीयत का खून हो, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी पाई जाती हो। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हलाल रोजी की कोशिश कीजिए। वाकई बहुत मुश्किलात, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब है कि मजबूरियां, इसमें कोई वाकई बड़ा नाजुक दो, लेकिन हलाकत बहरहाल हलाकत। कीमिया सआदत में मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस नकल करते हैं जिसका मजमून कुछ इस तरह है कि एक दौर ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान बचाने वाला ऐसा होगा कि जिस तरह डूमड़ी एक गार से दूसरे गार में छुपकर अपनी जान बचाती है दुश्मन, इस तरह ईमान बचाने वाला अपना ईमान बचाने के लिए मतलब है कि भागता फिरेगा। तो
اور کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں شادی کرنے کا حکم دیا، یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ وہ دور ہی ایسا ہوگا کہ اس وقت خلوت کی اجازت ہو جائے گی۔ مزید فرمایا انسان اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہلاک ہوگا کہ وہ ایسی ایسی فرمائشیں کریں گے کہ اس کی وجہ سے وہ حرام روزی میں پڑے گا، حرام ذرائع اختیار کرے گا، جیسے کہ بیٹی کی شادی ہے کما کے لا، میری بہن کی شادی ہے کما کے لا، اور اتنا خرچہ چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک دم سے اتنی رقم تو سکتے میں آ سکتی، جوا میں آ سکتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر پابندی، قرآن اور حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم پر اسلام نافذ کیا ہوا ہے، اور یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس اسلام کو عملی جامہ پہنا ہے۔ کوئی ڈنڈا لے کر پیچھے بھاگے اپنے اور اپنے مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ اقیم الصلاۃ حکم ہے نماز قائم کر، قرآن نے جگہ جگہ سینکڑوں مقامات پر حکم دیا ہے، تو اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے طور پر اسلام کو نافذ کریں، کیونکہ دور ایسا ہے کہ اب کوئی ہم پر ہے کہ ہم کو عمل تو کروائے گا، سارے یہ چل رہے ہیں حساب کتاب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان خود اگر بیدار ہو جائے اور اس کو ہے کہ سمجھ آ جائے، اس کی مدنی سوچ بن جائے، تو اس کے سارے معاملات جو حل ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کہ والدین اس کو فرمائشیں کریں گے ایسی کہ جس کی بجاوری کے لیے حدیث میں آیا کہ اس کو حرام ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ ماں باپ اگر مر گئے تو اس کے مزید جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ اس کو مجبور کریں گے اور ایسی فرمائشیں کریں گے، ایسی چیزیں مانگیں گے کہ اس کے لیے وہ یعنی کہ حرام ذرائع اختیار کرے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ واقعی یہ دور جو ہے آپ دیکھیں، بیٹا اگر یہاں آ گیا اور باپ کو اگر یہ مسئلہ بتا دے تو شاید باپ اسلام کے خلاف بھی گالی دینے سے نہ چوکے۔ بہت بکواس کرتے، مجھے لوگ بتاتے ہیں ایسا سا بکواس کرتے، نعوذ باللہ من کفریات بکنے سے بھی دور ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، حرام روزیوں میں لوگ پھر الٹا سیدھا علماء کو گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے۔ اگر کوئی مولانا بیچارہ صحیح مسئلہ بتا دے، اب اس کا ذاتی مفاد کیا ہے غریب؟ اس کی یہی غلطی ہے کہ تمہیں قرآن کی حدیث سنا دی، اس بیچارے اس کی یہی غلطی اور کیا غلطی؟ تو اگر میرے بیان سے کوئی ذہن بنا کر حرام روزی کو چھوڑ کر حلال روزی کی طرف آ نکلے، اب ایمان سے بتاؤ میرا کیا قصور؟ اچھا آپ حلال روزی بلاؤ گے، مجھے کون سا آپ نے کمیشن دینا ہے؟ بلکہ حرام روزی والے البتہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے، سرمایہ دار اس دور میں، اور حلال بہت مشکل، جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس دور میں انہیں کروڑوں روپیہ حلال ذریعے سے جمع کرنا اپنی سمجھ میں نہیں آتا، قریب ناممکن۔ جب تک وہ حرام ذرائع اختیار نہیں کرے گا فی زمانہ بہت مشکل ہے تو کوئی بندہ مالدار بن کر دکھائے، بہت مشکل، بہت ہی مشکل۔ تو یہ کہ اگر کوئی حرام روزی چھوڑنے پر آ جائے، میری بات تو مجھے گالی یاد ہے، ٹھیک ہے میرے تو درجے بلند ہوں گے، لیکن اپنا تو بیڑا غرق ہوگا دینے والے۔ تمہارا لے کے بڑا نازک دور ہے، تو بندہ حدیث کے مطابق اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے عزیزوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے بھی ہلاک ہوگا۔ اگر وہ حرام ذرائع کا کہتے ہیں تو نہیں کہتے اور شریعت کے مطابق چلاتے ہیں تو سبحان اللہ، اور ان کا حق ہے، اولاد پر ان کا حق بنتا ہے، اور قرآن نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی طرح لوگ یہ بھی عذر کرتے ہیں کہ جی بال بچوں کا پیٹ پالنا ہی عبادت ہے، ہم کو فرصت ہی نہیں کہ ہم یعنی کہ دین کی طرف آئے یا تمہارے اجتماع میں آیا کریں یا کچھ سیکھیں، ہم رات دن بچوں کی خدمت میں لگے اور یہ عبادت ہے سب سے بڑی۔ آپ کو ٹکرے ہوں گے، مجھے بھی ٹکرتے سے لوگ، تو ایسوں کی بھی قرآن نے کاٹ کر دی۔ قرآن صاف ارشاد فرماتا 28واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کنز الایمان شریف میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ اس طرح بیان کرتے ہیں، اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ
ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جس کو ایسا ہو جائے جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں، لازمی نقصان۔ اور پھر جب کسی کو موت آ جائے تو پھر وہ کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ یا اللہ تو مجھے مہلت دیتا تو پھر تیرا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا، میں تو ابھی جمع کرنے میں لگا ہوا تھا، ابھی تو گن گن کر ہی رکھ رہا تھا، ابھی تو پاکستان ہی میں کاروبار پھیلا تھا، مجھے تو اور ممالک میں بھی اپنی شاخیں کھولنی تھی، تھوڑا دبئی سے سیٹنگ کرنی تھی، کویت اکثر نو تعمیر ہو رہا تھا، وہاں سے بھی ٹھیکے لینے تھے مجھے، ابھی تو میں ذرا مال گن رہا تھا۔ یا اللہ تو نے مجھے اچانک کیوں موت دے دی؟ ایک دم سے میرا ہارٹ فیل ہو گیا، میرے کاغذات سارے اٹکے رہ گئے، میں تو ابھی بینک بیلنس بنا رہا تھا، مالک تھوڑی مہلت دے دیتا تو پھر میں ہاں دعوت اسلامی والوں کی مسجد کا آدھا خرچہ تو اٹھا ہی لیتا۔ یہ بیچارے بھلے پیسہ مانگ رہے، میں اس وقت تک تو ان کو ٹالتا رہا کہ ابھی ذرا ابھی کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، ایسے واقعات ہمارے ساتھ میں ایسے بول بچن لوگوں نے دیے، ایسے مطلب سبز باغ دکھائے، اور پھر ایک ٹکا بھی نہیں دیا، پھر ڈاکو ان کو اٹھا گئے اور کروڑوں روپے میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کھڈے میں اترے، بچوں کو اٹھا لے۔ نعوذ باللہ، ہم نے بددعا نہیں دی، یہ نہیں تماشے دیکھے، یہ تماشے ہم نے دیکھے۔ عین ممکن تھا کہ وہ اگر اللہ کے گھر میں دے دیتے تو شاید اس کی برکت سے وہ اس مصیبت اور آفت میں نہ پڑ۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آفتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں، جیسے حدیثوں میں تو آتا ہی ہے کہ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، لیکن اگر رقم ڈاکو کے مقدر کی ہے تو دعوت اسلامی میں کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن اپنے کو شناخت نہیں نا، میں تو شناخت نہیں، تو ہم تو ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہ بھائی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، دعوت اسلامی کا مرکز بن رہا ہے، فیضان مدینہ بن رہا ہے، تو جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ دیتا ہے، جس کے نصیب میں ڈاکو لکھا تو وہ ڈاکو کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب اچھے کرے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، قرآن صاحب کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا؟ پروردگار تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں اپنی نمازوں کی ذرا سیٹنگ کر لیتا، مشغولیت تھی کاروبار کی تو ذرا وہ نمازیں گول کرتا تھا، تو ذرا میرا کاروبار سیٹ ہو جاتا، بچہ میرا ذرا کاروبار سنبھال لیتا ہے نا، کوئی قابل اعتماد مجھے نوکر مل جاتا تو میں پھر مسجد میں ہی میں نے آنا تھا۔ یا اللہ تو نے مجھے مہلت دی نہیں، ابھی میرا بچہ تھوڑا کچا تھا حساب کتاب میں، اس لیے ذرا مجھے وقت دینا پڑتا تھا تو میری کوئی نماز چھوٹ جاتی تھی۔ یا اللہ تو تھوڑی سی مہلت دے دیا، تم نے کہا میرا ہارٹ فیل کر دیا، میں پھر تیری عبادت کرتا۔ یا اللہ تو تھوڑی مہلت دے دیتا تو میں نیک بھی بن جاتا۔ یعنی قرآن میں کلیئر یہ ہے نا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں ہوتا، میں نیک بن جاتا۔ یا اللہ بھی تو میں نے شادی کرنی تھی تو میں داڑھی رکھتا، مگر شادی کے بعد رکھتا، تو نے پہلے ہی مجھے اٹھا لی۔ کئی نوجوان ہیں شادی سے پہلے اٹھ جاتے اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے، خاندان والے سکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد داڑھی رکھ لینا، یہ بھی سنت ہے وہ بھی سنت۔ شادی میٹھی میٹھی سنت، اس میں نفس کا 16 آنے نہیں 17 آنے دخل، نفس کا 17 آنے دخل ہے۔ جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا نا، عید بھی نہیں پڑھتا نا، وہ بھی اس سنت کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ یہ ایسی میٹھی میٹھی سنت، یہ سنت عام طور پہ لوگ اپنے نفس کے لیے ادا کرتے ہیں، اور پھر اس سنت کی ادائیگی کے لیے ہر ایک تڑپتا ہے، اور پھر اس میں کوئی ایسا حرام کام نہیں چھوڑتا بندہ۔ سنت کے لیے کتنے فرائض کا خون ہوتا ہے، کتنے واجبات کا خون ہوتا ہے، کتنے ڈھول پیٹے جاتے ہیں، اور کتنی رقاصائیں رقص کرتی ہیں، اور کتنے زور زور سے گانے بجائے جاتے ہیں، اور ہزاروں رسمیں ہوتی ہیں الٹی سیدھی، ہر خاندان کی ہر قبیلے کی الگ الگ رسمیں، اور ایسی ایسی حیران کن اور پریشان کن رسمیں ہوتی ہیں کہ سن کر دماغ کام نہیں کرتا کہ شیطان کو یہی گھر ملا تھا جہاں اس نے پورا زور خرچ کر دیا اور احسان کو بے وقوف بنایا کہ دنیا حسین۔ ایسی حالت تو یا اللہ تو نے مجھے مہلت دی ہوتی، میں شادی کر لیتا، ایک آدھ بچہ ہو جاتا، پھر میں داڑھی رکھ لیتا۔
क्योंकि शादी करते ही अगर दाढ़ी रखूं तो फिर भी झगड़े का इम्कान होता है, तो 2-4 बच्चे हो जाते फिर मैं दाढ़ी रख लेता, ऐसी क्या बात है? जरूर जैसे किसी को दावत दो ना, अरे हम तो इसके आशिक है दीन के, तो अरे सुभान अल्लाह, वो तो बड़ा शौक है, हम जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, हीरो जान छोड़ा, इस तरह मतलब लोग बोलते रहते। मुझे तो बड़ा तजर्बा हो जाता है, होता रहा इसका, तो बड़ा शौक है, हम तो आशिक है, हम तो दीवाने, तो करना वही है जो शैतान ने मशवरा देना। अपनी बात किसी ने नहीं मानी, तो दीवाने बेचारे आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो अल्लाह का करम है कि इज्तिमा रेल पे में। तो बहरहाल मरने के बाद कहोगे या पहले कहोगे कि या अल्लाह मुझ में नेक बनना चाहता हूँ, मुझे नेक बना दे? क्यों कुरान तो ऐसे लोगों की मतलब है कि वो हश्र बयान कर रहा है जो कहेंगे कि या अल्लाह तूने मोहलत क्यों नहीं दी कि मैं नेक बन जाऊं? इस वक्त नेक बनना चाहते हो या फिर मरने के बाद आप मोहलत मांगोगे या अल्लाह अब ऐसा ही कर, भेज दे दोबारा? तो जाते ही दाढ़ी भी बढ़ाऊंगा, जुल्फे भी रखूंगा, इमामा भी बांधूंगा, और नमाज 5 वक्त मस्जिद में अजान से पहले जाऊंगा। रमजान के रोजे, अरे सारा ही साल रोजा रखूंगा, या अल्लाह मुझे भेज दे, तू बस खाली तो भेज के देख ले, मैं सब कुछ करूंगा। सारे साल का रोजा फर्ज नहीं, एक में मुबालगे सर्च करूं कि वाकई जब किसी पर आकर पड़ती है ना तो वे हर बात को मानने के लिए तैयार होती है, लेकिन अभी आकर नहीं पड़ी, तो इसलिए रमजान के रोजे भी छूट रहे हैं, नमाजें भी कदा हो रही है, गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, क्या नहीं करते हम लोग, बदकिस्मती। तो मेरे भाइयों, हमें उनमें से नहीं होना कि मरने के बाद कहना पड़े कि या अल्लाह मुझे नेक बना, मैं नेक बन जाता, मुझे मोहलत मिल जाए, अभी से मोहलत मिल जाए, कोई चोट लग जाए, ऐसी अल्लाह करे। एक साहब ने मुझे वाकया सुना, बड़े मेरे बयान उन्होंने सुने, लेकिन वो नहीं गलता, लेकिन वो कैसे गला, हैरत होती है। एक बार वो मेरा बयान सुनकर रात को जब सोया, उसने बताया कि सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मर चुका हूँ और मुझे कब्र में रखा गया। अब आ गए मुनकर नकीर आ गए, तो कहने लगे कि हाँ, किसी से वो यानी आए और बातें की उन्होंने, ये कौन है, तो कहा कि मुसलमान है। अंदर चले गए और कहा कि ये मुसलमान है। अंदर से आवाज आई कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो। तो मेरे मुनकर नकीर ने उसको कहा, उस गैबी आवाज को, कि ठीक है, लेकिन इसके चेहरे पर कोई मुसलमानी की अलामत नहीं है और दाढ़ी भी इसके चेहरे पर नहीं है, मुसलमानों वाली अलामत नहीं है। तो फिर आवाज आई कि इसको दोज़ख में दाखिल कर दो। बस ये सुनना था कि वो कांप उठा और एकदम उसकी आंख खुली और वो सारी रात कांपता रहा। उसने बताया कि वो सारी रात कांपता रहा, बहुत बेचैन हो गया, यहाँ तक कि बस मैंने ऐद कर लिया कि अब भी क्या मैं दाढ़ी काटूंगा, संभाल ही नहीं है। जब इन्हें दोज़ख का हुक्म हो गया कि इसके चेहरे पर निशानी नहीं है मुसलमानों वाली, ये तो यहूदियों जैसा चेहरा है, यही बात है हदीस शरीफ में, तो 12 हदीस सुनाता रहता हूँ कि दाढ़ी बढ़ाओ और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। ये भी परसों ही को मेरे को रात को उस शख्स ने ये बात बताई, तो दाढ़ी मैंने रख ली, दाढ़ी रख ली तो बेगम साहिबा ने झगड़ा कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी आफत है, लुगाई जो ये बहुत बड़ी आफत। अगर ये सही चली तो चली, वरना ये है खुद तो डूबी है, उसको भी लेकर घसीट के जाती है। तो अब उसने मतलब यानी कि वो फड्डा कर दिया कि तुम्हें रखनी थी तो शादी से पहले ही रखनी थी, कि मैं भी देख कर आती। अब ये तुमने मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो शादी के बाद रखेंगे, तो मैं उनको समझाता भी, अभी से रख लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हें समझदार लड़की मिलेगी, और अभी से नहीं रखोगे तो आएगी वो तुम्हारा चेहरा देखकर फिर वो तुमसे झगड़ा करेगी। समझे? मतलब ये कि यही मतलब इसको यूं समझे कि सैंपल तुमने कुछ दिखा दो और माल कुछ अब दे रहे हो तो झगड़ा करेगी। इसी यही मतलब प्रैक्टिकल उसको हो गया। अब उसने झगड़ा किया उससे, दाढ़ी काटो या फिर मुझे रखो। उसने कहा ठीक है तेरी मर्जी, मैं अब दाढ़ी तो नहीं काटूंगा, तू अपने घर जा सकता। तो वो रूठ के चली गई। अच्छा, उसका बाप भी माशाल्लाह दाढ़ी वाला, उस लड़की का सर दाढ़ी वाला, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह जानता हूँ। तो वो बेचारा मतलब उसका ज़हन मजहबी है, सिर्फ इस वजह से दलील तू भाग कर आ गई कि तेरे शोहर ने सुन्नत अदा की तो अच्छा ही काम किया, बोला फिर मेरे घर भेज दिया, उस सेटिंग हुई। और अगर ससुर भी टेढ़ा हो तो वो फिर चढ़ाई करके आ जाए, ऐसा भी होता है। अगर बीवी नहीं बोलती तो वो सास ससुर चढ़ाई कर देते हैं। आजकल तो बड़ा अजीब दौर। तुम्हारा नहीं कि आजमाइशें तो है, समझे, आजमाइश तो पड़ेगी, इम्तिहान तो आएगा, लेकिन ये कि अगर आप साबित कदम रहोगे तो मसला हो जाए। तो हर एक ये सोचे कि मैंने ये ख्वाब देखा, अपने तौर पर सोचे, उसने बेचारे ने ख्वाब सुना है, समझे, और इस पर उसने दाढ़ी रख ली। हालांकि ना वो मुबल्लिग है, मेरा का इस्तेमाल शायद कभी भी नहीं सुना, तो ना वो माहौल में, लेकिन उसने जब ये ख्वाब देखा तो उसकी वाकई यानी कि वो हालत सही हो, इतना वो घबरा गया और दाढ़ी रख ली और अब बड़ा यानी कि मोतकिद हो गया दावत इस्लामी का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या तुम भी ख्वाब देखना चाहते हो? नौजुबिल्लाह अपने लिए हुक्म सुनना चाहते हो कि तुम्हें कह दिया जाए गैबी आवाज से कि इसको दोज़ख में ले जाओ, तो फिर घबरा के अब दाढ़ी रखो। उसको तो मोहलत मिल गई, अल्लाह ताला उसको जन्नती कर दे। अपनी दुआ अल्फाज तो यही कहे गए और फिर उसकी तरदीद नहीं हुई, नहीं अब फिर जन्नत में ले जाओ, ये उसने नहीं सुना। दोज़ख में ले जाओ ये सुना और हालत खराब हो गई, आंख वाँख खुल गई और सारी रात में कांपता रहा। तो बहरहाल इस्लामी भाइयों, अपने चेहरे पर, अपने लिबास में, अपने बालों में, ये मुसलमानों वाले बाल नहीं है, इस्लामी बाल नहीं है जो हमारे सरों पर
वो तो माहौल की बरकत है कि दावत इस्लामी वाले आपको जुल्फों वाले मिलेंगे, बाकी जनरल पब्लिक जो है बल्कि अच्छे खासे लोग नहीं रखते माहौल। मैं नहीं कहता कि वो हराम है या नाजायज, में फतवे नहीं दे रहा, मैं निशानी की बात कर रहा हूं। तो इस्लामी निशानी जो है ये जुल्फे। मेरे प्यारे और मीठे मीठे मदनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे अक़दस पर पूरे बाल रखे, कभी आधे कान तक, कभी पूरे कान तक, कभी बढ़ गए तो शानों से छूने लगे, कानों से नीचे, कंधों से नीचे आपने कभी नहीं बनाए। तो बहरहाल ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे बाल रखे, और अगर सरे अक़दस पर बाल साफ करवाए भी तो आपने सिर्फ एहराम से बाहर होने के लिए, जैसे उम्रा पर, हज पर आपने सरे अक़दस के सारे बाल मुबारक जो थे उनको मतलब मैंने फारिग किया, उसका हल आपने कराया, इसके अलावा पूरे बाल रखे। तो बहरहाल प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पहले कि ये कहना पड़े वाकुम मिनस सालिहीन, और नेकों में होता, ये कहना पड़े, इंशाअल्लाह ये कहना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। अभी से हिम्मत कर लीजिए, अगर इन रहमतों की बारिश में भी अगर हम सूखे के सूखे रह जाएं तो खुदा की कसम हमसे बढ़कर कौन महरूम और बदकिस्मत होगा। ऐसा भाइयों, बिल्कुल सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए और अहद कर लीजिए कि अब न नमाज छोड़नी है, न रमजान का कोई रोजा छोड़ना है। पिछली नमाजों को भी कोशिश करके अदा करना है, रमजान के पिछले अगर कभी रोजे कज़ा भी हुए तो उनको भी अदा करना है इंशाअल्लाह। और बाल मुसलमानों वाली रख, एक मुट्ठी दाढ़ी नीचे से कटाना और मुंडाना दोनों हराम, एक मुट्ठी से बढ़ गई तो अब काट, इससे पहले हराम। हाँ, ऊपर गाल पर से अगर बाल लिए तो खत बनाना जिसको कहते हैं इसकी इजाजत है, लेकिन वो ठोड़ी के जो बाल हैं ये नहीं काट जब तक एक मुट्ठी ना हो, ये इजाजत। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शाहतार पर है आन, रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या